So in this class we are going to learn how to translate Hindi into English, because in the last test many students fail in translation. So now once again I am teaching you how to translate. Okay? So these are some Hindi sentences. Now we have to translate into English. So we have rule: subject plus helping verb. Okay. Okay. Whenever you have to translate any Hindi sentence into English, you have to follow this rule. Okay. So now you have written all the rules how to translate Hindi and English, right? So firstly you have to underline that words which are matching in the rule. Like चाहिए था, you have written. Wait, don't tell. डिंडौरी में रहते हैं, so you match 66 rules I have made you written, right? You match, and where it matches then you underline that words. Understood? So now चुके होंगे, लगता है, the next word is वाले थे, the next is है, the next is रहा होगा. रहा होगा we find many places, like shall be, will be, रहा होगा, right? And has shall have been, will have been, रहा होगा, right? And must be, जरूर रहा होगा. So where does it match correct? So it matches जरूर रहा होगा. So you underline जरूर रहा होगा. Understood? Okay. The next is चुकी है. The next is या करता है. You underline the fixed word. ता है you find many places, like ता है, सकता है, चाहता है, लगता है. Everywhere you find ता है, but it matches on या करता है. But this is not या करता है. The sentence was या करता था. Understood? Okay. So now we have to translate. So first is subject. रोहित को इंग्लिश बोलना चाहिए था. Right subject. What is रोहित? Then helping verb. चाहिए था. चाहिए था means what? Should have. Okay, right. Then write verb. बोलना means speak. You write third form. Spoken. And object English. Any doubt? No. Any doubt? No. Okay, next. हम डिंडौरी में रहते हैं. What is subject? Next, helping verb. What is helping verb? ता है. ता है means do does. We do not use in positive sentence. You can directly write verb. So what is verb? रहना. रहना means is. So sorry, leave. We leave. So next, डिंडौरी में. So you can write में means in, or डिंडौरी means डिंडौरी. So we live in डिंडौरी. वे आ चुके होंगे. What to write? Subject. What is वे? they. फिर क्या लिखना है? Helping verb. What is चुके होंगे? चुके होंगे means shall have, will have. So we write will have. We will have. They will have. Then verb. आना means come. Write third form. come. Understood? क्या वह रोने लगता है? So you underline, sorry, you hide क्या? Now you read. वह रोने लगता है. So subject is what? वह, he. Then helping verb ता है means does. Does. But don't write because positive sentence, right? Because it is hide. Now it is hide. So now it is positive. After showing this, it become
इंटेरोगेटिव, राइट? सो नाउ यू मेक इट पॉजिटिव। वह, ही, का है डज, लगता है मीन्स स्टार्ट्स, एंड रोना मीन्स ट्राई। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दो वर्ब एक साथ नहीं होते हैं इसलिए टू लगाते हैं। इंग्लिश में दो वर्ब कभी एक साथ नहीं आएंगे, टू लगाना पड़ेगा या फिर नाउन आ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, सो अब इसको हम शो करेंगे। जैसे ही शो करोगे इसमें आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इंग्लिश सेंटेंस में जब आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो सेकंड वाला वर्ड बाहर आ जाता है, तो इसका सेकंड वाला वर्ड ये है, ये इधर आ जाएगा। बन गया डज ही स्टार्ट टू क्राई। स्टार्ट की जगह में आप बिगिंस भी लिख सकते हैं, बिगिन। डज ही बिगिन टू या डज ही स्टार्ट टू क्राई। अंडरस्टूड? ओके, आप पढ़ाने वाले थे, सब्जेक्ट कौन? आप मीन्स यू। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाले थे। क्या होता है? वर्ब अबाउट टू। और फिर वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाना। पढ़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच। क्या बना? यू वर अबाउट टू टीच। अंडरस्टूड? हम इंजीनियर्स हैं, सब्जेक्ट कौन? वी। फिर हेल्पिंग वर्ब हैं मीन्स आर। इंजीनियर्स, इंजीनियर। अच्छा, कई स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि यहां भी है और यहां भी है, इसमें भी आर लगा रहे हैं। अच्छा, है लिखा है तो यहाँ पे आर आ गया, ठीक है। इसमें आर लगा रहे हैं, इसमें सर इसमें आर लगा रहे हैं, इसमें नहीं लगा रहे हैं, है ना? तो ये दिक्कत हो जाती है। तो कैसे पता करेंगे कि आर ही लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ पे है के पहले आप देखा करो कि वर्ब है कि नाउन है। अगर ये नाउन है, नाउन है तो आर आएगा। और अगर यहाँ पे देखो रहता है लिखा है, रहना कोई नाउन है क्या? रहना वर्ब है, तो ये वर्ब है, इसलिए फिर वो जो हमने रूल्स लिखे हैं वो आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो हर जगह जहां भी है आया वहां आर नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, इज नहीं आएगा। हम उसके पहले अगर नाउन है तब इज एम आर आता है। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, सचिन जरूर मुंबई जा रहा होगा। सब्जेक्ट इज सचिन। फिर हेल्पिंग वर्ब जरूर रहा होगा मीन्स मस्ट बी। जरूर रहा होगा मीन्स मस्ट बी। एंड वर्ब इज जाना। जाना मीन्स गो। मस्ट बी के साथ क्या लगेगा? आई एन जी। सो सचिन मस्ट बी गोइंग। अब बचा क्या? मुंबई, टू मुंबई। डन। वह गाना कब गा चुकी है? माइंड, दिस इज क्वेश्चन। वह गाना कब गा चुकी है? डोंट fear. You hide that word. So you now you start read. Very simple sentence. वह गाना गा चुकी है. Make it simple. If you find any question sentence, make it simple by hiding that question word. Understood? So I hide कब, then it becomes वह गाना गा चुकी है. Right subject. What is वह? Means see. फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? चुकी है। चुकी है मीन्स क्या होता है? हैज हैव, चुका है। वर्ब गाना मीन्स संग। हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो सिंग का संग बन जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट इसमें? गाना। गाना मीन्स अ सॉन्ग। क्या बना? सी हैज संग अ सॉन्ग। अब हमें इसे शो करना है। जैसे ही शो करोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए क्या करते हैं? सेकेंड वाले वर्ड को बाहर लिख देते हैं, तो ये वाला वर्ड इधर आ जाएगा। तो हैज सी। डन। अब इसमें कब लिखा है तो कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। तो आप यहाँ पे व्हेन लगा दो। ध्यान रखना है यहाँ पे सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, सेंटेंस के अंदर आएगा तब लिखते हैं। मैनी टाइम्स आई टीच यू।
वह कार चलाया करता था, सब्जेक्ट कौन? वह मीन्स हेल्पिंग वर्ब, या करता था, यूज टू। नाउ वर्ब चलाना, कार चलाना को ड्राइव बोलते हैं, तो ड्राइव, और ऑब्जेक्ट है आ कार। समझ में आया? तो आई होप you understand how to translate Hindi into English. You must have to follow the rules. Don't translate in mind directly. Firstly, you learn how to translate. After practicing many times, your mind automatically translates. Understood? Yeah. But in the beginning, you have to follow the rule. Subject, helping verb, object.